Good morning, dear students. Welcome to PN Amarsi e-learning classes. चैप्टर नंबर 12 हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट का मतलब होता है छुपा हुआ हुनर। इस लेसन में हमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिससे जो पढ़ने में होशियार नहीं है, और इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा, आत्मविश्वास। किस तरह इस बच्चे का आत्मविश्वास वापस आ जाता है वही हमें देखने को मिलेगा। Everyone is different in this world. Differences are a natural part of life and nature. We should not judge everyone on the same parameters. It is important to accept the differences in nature and personalities and give space to others to grow. Sudeep stood quietly amidst before his mother with his head down. He had again got D grades in mathematics and science exams. What shall I do with you? His mother grumbled. You do nothing. You do not even try to learn anything. Look at your brother and sister. They are so clever. They always get good grades. तो सुदीप की मदर जो थी वह उसे डांटती है कि तुम्हें फिर से डी ग्रेड मिले हैं एग्ज़ाम्स में, मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ। उसे चिल्लाते हुए डांटती है, तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ याद नहीं करते हो। देखो अपने भाई और बहन को, वो पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, उन्हें हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सुदीप डिड नॉट स्पीक अ वर्ड बिफोर हिज मदर, बट टीयर्स फिल्ड हिज आइज। That night he slept quietly without having his dinner. No one came to him. He felt alone. You are stuck in class 8, shouted his teacher at school. You are going to fail this year also if you do not study hard. You have already wasted 1 year in this class. Aren't you ashamed of yourself? तो टीचर भी जो है वह सुदीप पर चिल्लाती है, कहती है इस साल भी तुम क्लास 8 में फेल हो जाओगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे। लास्ट ईयर भी तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो चुका है। क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती है? सुदीप स्टूड क्वाइटली विदाउट सेइंग अ वर्ड। What could he say? He really did not understand the tricky questions of mathematics. His understanding of science and other subjects was also poor. He could not read or write as fast as others. He wanted to learn, but he could not cope up with the class. Of course, he was ashamed. He hated himself, but he did not know what to do. The only thing that helped him keep his balance was his clay models, which he made in the far corner of the school ground. Whenever he felt lonely, he would go to the far corner of the old playground where no one could see him. तो सुदीप जो था उसे मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चंस जो थे वो समझ में नहीं आते थे। उलझे हुए सवाल जो थे उसे समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि दूसरे जो अदर सब्जेक्ट्स थे उसमें भी वो पढ़ाई में ख़राब था। जिस तरीके से दूसरे बच्चे क्लास में लिखते थे फास्ट, वो उस तरह से बच्चों के साथ नहीं अपने आप को रख सकता था। सुदीप जो था उसे ट्रिकी क्वेश्चंस मैथ्स के समझ में नहीं आते थे। यहाँ तक कि साइंस या दूसरे सब्जेक्ट्स जो थे उसमें भी उसके वो ख़राब मार्क्स आते थे। वह दूसरे बच्चों के साथ ना जल्दी लिख सकता था ना ही पढ़ पाता था। वो चाहता था पढ़ना पर वो कर नहीं पाता था, और कई बार तो उसे समझ में ही नहीं आता था कि वह क्या करे। पर जब भी वह ऐसा हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था, तो क्ले मॉडल्स उसमें वो एक कला थी जिसे वो स्कूल ग्राउंड में जाके बनाता था। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता था वो वहाँ पे जाके बनाता था जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता। He would pick up some wet mud and mold it into beautiful shapes. Today also he was molding mud into the shape of a Ganesha when someone spoke from behind him. How beautiful, isn't it? That a Ganesha, it looks so different from other Ganeshas I have seen, said a woman standing behind Sudeep. तो जब भी उसका मन उदास रहता वो स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर बैठ जाता और वहाँ से कुछ मिट्टी उठाकर अलग अलग आकार के चीज़ें बनाता था मिट्टी की। एक बार उसने गणेशा बनाया जो कि बहुत ही
अलग था। एक जब वह बना रहा था तब पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दिया। Sudip looked up and saw a kind faced lady. This was his first meeting with Mrs. Rao. Mrs. Rao appreciated what Sudip had just created with mud. She encouraged him to show her all the other little things he had made before. तो जब सुदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काइंड लेडी खड़ी हुई थी जो कि उसकी पहली मुलाकात थी मिसेस राव के साथ। मिसेस राव ने उसे बहुत प्रोत्साहन दिया जो भी उसने इस मिट्टी के साथ बनाया था और उससे कहा कि तुम दिखाओ तुमने और भी क्या चीज़ें मिट्टी से बनाई हैं। मिसेस राव वॉज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द स्कूल where Sudeep studied. She spoke to his teacher about Sudeep's talent. Sudeep's teacher could not understand why Mrs. Rao was so delighted. तो मिसेस राव जो थी वह सुदीप के स्कूल की एक ट्रस्टी थी और उसने उसके क्लास टीचर से बात करी, लेकिन उसकी क्लास टीचर जो थी वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि सुदीप की इतनी तारीफ वो क्यों कर रहे हैं। He is a useless child, madam. For the past 2 years, he is in class 8, she said. Everyone can't do everything, Mrs. Rao replied. Sudeep is not like other children. He has a learning problem. He can't help it, but to do the other children have his talent of shaping clay. He is different from others, Mrs. Rao explained. जब उसकी क्लास टीचर ने कहा कि वह लास्ट 2 ईयर से क्लास 8 में ही पढ़ रहा है, उसे कुछ नहीं आता है, तब मिसेस राव ने समझाया कि हर बच्चा हर कोई चीज़ नहीं कर सकता है। वह बच्चा दूसरे बच्चों के जैसा नहीं है, उसे सीखने में तकलीफ़ है, वह अपने आप की मदद नहीं कर सकता है, बट उसमें एक हुनर है जो है शेपिंग क्ले का। इस तरीके से मिसेस राव ने टीचर को समझाया। Mrs. Rao changed Sudeep's life. She encouraged him to make things with clay, paper, and wood. She arranged to have them sold in the handicraft market. As his things became famous, his teacher stopped scolding him. Mrs. Rao spoke to Sudeep's mother also. Soon, she stopped comparing Sudeep with his brother and sister. Sudeep's confidence grew and he made many beautiful things. All his things were sold quickly. His family became proud of his talent. At school, other children came to him while he was working and watched him with wonder. They appreciated the things he created. Sudeep was now confident and his face glowed with happiness. He never felt sad and ashamed of himself again. मिसेस राव जिन्होंने सुदीप की लाइफ बदल दी, उसे एनकरेज प्रोत्साहन दिया कि वो और चीज़ें बनाए क्ले से, पेपर से, वुड से, और उन्होंने यहाँ तक कि उसकी मदद की कि वो जो भी चीज़ें ऐसी बनाता था उसे मार्केट में बेच दे। इस तरीके से सुदीप जो था वो फेमस हो गया। टीचर ने उसे डांटना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे डांटना बंद कर दिया और अपने भाई बहनों से उसको कंपेयर करना छोड़ दिया। इस तरीके से सुदीप जो था उसमें आत्मविश्वास का बढ़ावा हुआ और भी वो कई चीज़ें साथ में बनाने लगा। स्कूल में भी जो दूसरे बच्चे थे वो उसके साथ जाते थे, उसे देखते थे कि वो किस तरीके से बनाता है, और इस तरीके से सुदीप का जो आत्मविश्वास था वो वापस आ गया और वो खुश रहने लगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।